Hello students. In the last lecture we were discussing about the topic control and coordination, where I have discussed the structure of neurons, that is the unit of the nervous system, and then we also discussed about a general scheme of how the nervous impulses travel in our body. So there arises a question that how sugar and food taste if our nose is blocked. ठीक है, अगर आपने भी देखा होगा वैसे भी कि जैसे आपको सर्दी जुकाम होता है, नाक आपकी जाम रहती है, नोज इज ब्लॉक्ड, तो हाउ डू वी टेस्ट शुगर एंड सॉल्ट और द फूड? जनरली आपको फूड का टेस्ट नहीं लगता, क्यों? रीजन इज दैट वी टेस्ट विद आवर सेंस ऑफ स्मेल एज मच एज वी डू विद आवर टंग. ठीक है, जो हमारे टंग होते हैं एंड द टेस्ट बड्स होते हैं, दे कैन ओनली टेस्ट स्वीट, सॉल्टी, सोर और मोर ब्रॉड flavored components, but it is the sense of smell, it is our sense of smell which tells our brain what we are tasting or we are eating. ठीक है, तो जो हमारा टंग होता है, आपको क्लियर हुआ कि जो हमारा टंग होता है, टंग में जो टेस्ट बड्स होते हैं, दे कैन टेस्ट ओनली स्वीट, सॉल्टी और मोर ब्रॉड फ्लेवर्स ऑफ components, but it is the sense of smell which tells our brain what we are eating or tasting. इसीलिए taste, that is why we take a whiff of food when we are going to eat it. ठीक है, जब भी हम कुछ खाना खाने जाते हैं तो हम उसको एक just we take a whiff of that food. That is the reason. So let's write this question. That's very important question. कि how do we taste sugar, or how sugar or food taste if our nose is blocked. So the answer is that we taste with our sense of smell as much as we do with our tongue. We do with tongue. Our tongue and taste buds recognizes sweet, salty, sour or more broad flavors, but it is our sense of smell, which tells our brain what we are tasting or eating. And that is why we take a whiff of food before we eat it. Okay, अब हमने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ लिया. Let's see the types of nervous system. ठीक है, कितने नर्वस सिस्टम के टाइप होते हैं? There are mainly, let's start with the types of nervous system.
नर्वस सिस्टम जो होता है दे आर मेनली ऑफ 3 टाइप. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, NS for nervous system, right, which is also known as CNS. Peripheral nervous system, PNS, CNS, and third is autonomic nervous system, ANS. ठीक है. अब एक एक करके हम देखेंगे. पहले मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट करूंगी, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. रिफ्लेक्स एक्शन हम डिस्कस करेंगे. रिफ्लेक्स एक्शन डिस्कस करेंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, राइट. अब जो दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ द 2 मेन पार्ट्स, our brain and the spinal cord. So this central nervous system, it consists of 2 main parts. It consists of our brain and spinal cord. ठीक है. ब्रेन के बारे में आपके NCERT में चैप्टर पेज नंबर 117 पे आवर ब्रेन करके हेडिंग में ब्रेन के बारे में पूरा डिटेल में दिया हुआ है. आवर ब्रेन पेज नंबर 117. ठीक है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे. अब जैसे 3 तरीके के नर्वस सिस्टम है, तो पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी के 2 पार्ट हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. तो पहले ब्रेन को डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, फिर बाकी नर्वस सिस्टम. तो आवर ब्रेन is the part of the body, is the organ of the body where the thinking is concentrated, है ना. So the thinking is concentrated in our brain. हमारे ब्रेन में क्या होता है? Thinking is concentrated. Okay, and this brain, it's a very soft part, so it is surrounded by a hard bony structure which is known as the cranium or the brain box. ठीक है, bony box. तो our brain it is surrounded by the cranium. The cover of the brain is known as the cranium, and this is thinking is concentrated in brain, as well as these brain is the main coordinating center of the body. So you can write this also. Brain is the main coordinating सेंटर ऑफ द बॉडी. मैं फिगर अभी आपका दिखाती हूँ, थोड़ी देर में फिगर भी बनाऊंगी. तो मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है एंड इट इज कवर्ड बाय क्रेनियम. इसके कवर को क्या बोलते हैं? क्रेनियम और बोनी बॉक्स. और इस बोनी बॉक्स के अंदर या इस क्रेनियम के अंदर, इनसाइड दिस बोनी बॉक्स और इनसाइड दिस क्रेनियम, द ब्रेन इज कंटेन्ड इन अ फ्लूइड फिल्ड बैलून विच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम द फर्दर शॉक. जो ब्रेन को झटका लगता है, हमारे सिर को झटका लगता है, तो सिर के अंदर जो ये स्कल है, इसके अंदर आप the cage inside which the brain is present is known as the cranium. क्रेनियम के अंदर भी एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसमें कि फ्लूइड भरा होता है, एंड दिस क्रेनियल फ्लूइड इट प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन फॉर द शॉक. ठीक है. सो inside the brain, inside the bony box, the brain is contained in a fluid filled balloon. अब ये फ्लूइड का काम क्या होता है? इट प्रोवाइड्स फर्दर शॉक एब्जॉर्प्शन और इट प्रोटेक्ट्स ब्रेन फ्रॉम द शॉक, विच प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम शॉक और इंजरी.
ठीक है, ये जो फ्लूइड होता है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। अब आवर ब्रेन इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ब्रेन जो है हमारे पूरे ब्रेन का जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। लेट्स राइट दिस 3 पार्ट्स। तो इट इज डिवाइडेड इनटू फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, जिसमें कि जो फोर ब्रेन होता है ना, दैट इज द मेन थिंकिंग पार्ट। सो आवर ब्रेन इज divided into 3 parts further. Forebrain, midbrain, and third part is hindbrain. फोर ब्रेन क्या होता है, अगर जब आप अभी मैं दिखाऊंगी स्ट्रक्चर, ये जो आगे से लेकर पूरा ये जो ऊपर ए वाला एरिया होता है ना ब्रेन का, जो कवर कर रहा है, दैट इज द फोर ब्रेन। और उसके नीचे फोर ब्रेन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये आगे वाला फोरहेड जो है उसको फोर ब्रेन कहेंगे। दिस एरिया, इंटायर एरिया, इट कॉन्स्टिट्यूट द फोर ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट। आप जब सोचते हो तो आपको लगता है ना कहां से सोच रहे हो, इट इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ अवर बॉडी, राइट। तो फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन and it is specialized, it contains the separate areas which are specialized for hearing, smell, sight and so on. So it is the main thinking part and it contains separate areas specialized for hearing, smell, sight में देखना एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये फोर ब्रेन जो है ना, इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फोर ब्रेन जो है ये फिर 3 पार्ट्स का बना होता है, तो इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। लेट्स सी व्हाट आर दोस 3 पार्ट्स। अब फोर ब्रेन फिर से 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो फर्स्ट इज olfactory lobe. The first part of the forebrain is olfactory lobe. This is the forebrain, first part of our brain. Midbrain constitutes the second part and hindbrain constitutes the third part. Now this forebrain, it is again divided into 3 parts: olfactory lobe, cerebrum and diencephalon. ठीक है, the second part is cerebrum, जो कि लार्जेस्ट पार्ट होता है किसी भी ब्रेन का। लार्जेस्ट पार्ट क्या है? सेरिब्रम होता है। एंड द थर्ड पार्ट इज डायनसेफेलॉन, राइट। तो अब हम देखते हैं ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब क्या होता है? इट इज फुल्ली कवर्ड बाय सेरिब्रम। ऑल्फैक्टरी लोब क्या होता है? इट रिसीव्स इम्पल्सेस फॉर स्मेल। ऑल्फैक्टरी नर्व्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे नाक में प्रेजेंट होते हैं, नोज में प्रेजेंट होते हैं। तो ऑल्फैक्टरी लोब इट इज प्रेजेंट इन द फोरब्रेन एंड फुल्ली कवर्ड बाय सेरिब्रम। तो इट इज फुल्ली covered by cerebrum and it receives impulses for smell. Receives impulses for smell.
तो जो किसी भी चीज को हम स्मेल करते हैं ना, उसका इम्पल्स कहाँ जाता है? ऑल्फैक्टरी लोब में, राइट, विच इज प्रेजेंट इन द फोर ब्रेन. नेक्स्ट इज द सेरिब्रम. सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. Cerebrum is the largest part of brain and it is made up of two cerebral hemisphere. It is made up of two hemisphere. दो पार्ट होते हैं. जो हमारा ये सिर होता है ना, यहाँ पे आप ऐसे सुनते होंगे बचपन में या घरों में बात करते हुए, यहाँ पे तालू होता है या इस तरीके से एक सॉफ्ट पार्ट होता है. तो ये पूरा ब्रेन जो है ना, यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड होता है, राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट. ठीक है, तो ये जो राइट पार्ट इज नोन एज राइट हेमिस्फीयर एंड दिस इज द लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड दीज टू पार्ट्स दे आर कनेक्टेड विद द फाइन नेटवर्क ऑफ नर्व्स विच इज नोन एज द कॉर्पस कैलोसम. ठीक है, ये जो राइट पार्ट है और ये लेफ्ट पार्ट, these both parts they are covered by they are connected, they are joined by the corpus callosum and corpus callosum are the fine network of nerves. तो ये जो cerebrum होता है, it consists of two hemisphere which are known as cerebral hemisphere. Cerebral hemisphere, ठीक है, and these both two hemisphere they are connected by hemisphere joined together by corpus callosum. The structure is known as corpus callosum. Corpus callosum होता क्या है? They are the fine network of nerves. What is corpus callosum? Fine network of nerves. ठीक है, अब ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है ना, जो कि सेरिब्रम कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, तो जो सरफेस होता है, द सरफेस ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, they are known as the gray matter and they are formed by the gray matter and they are known as the cerebral cortex. जो surface होगा hemisphere का, it is formed by the gray matter which is known as the cerebral cortex. Cerebral cortex होता है ना, it is highly folded. इसमें न्यूरॉन्स होते हैं, they are present in a very highly folded form. Cerebral cortex basically it will contain many neurons and these neurons present in a very highly folded form just to increase. Why they are occur in the highly folded form? To increase for the accommodation of the neurons. More and more neurons accommodation occurs. जितना ज़्यादा neurons होगा उतना ज़्यादा active रहेगा. ठीक है, तो the surface of cerebral hemisphere है ना, they are formed by gray matter. आपने कहते सुना होगा, अरे बड़ा मतलब कोई इंटेलिजेंट आदमी हो तो उसके लिए कहा जाता है यार इसका ग्रे मैटर बहुत ज्यादा है. जितना ज्यादा, क्यों? क्योंकि ग्रे मैटर में जितना ज्यादा फोल्डेड फॉर्म में रहेगा, जितना ग्रे मैटर रहेगा उतने ज्यादा न्यूरॉन्स रहेंगे और उतना इंटेलिजेंस उतना ज्यादा होगा. ठीक है, एंड दिस ग्रे मैटर इट फॉर्म्स द सेरिब्रल, इट इज नोन एज द सेरिब्रल कॉर्टेक्स. सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है? इट इज फाउंड इन हाईली वेरी, मतलब दे आर प्रेजेंट इन हाईली फोल्डेड फॉर्म. दे आर प्रेजेंट इन हाईली folded form. Why? To increase area for accommodation of more neurons. Why they are present in highly folded form? To increase area for accommodation of, इसको थोड़ा जूम करिएगा, more न्यूरॉन्स. ठीक है, अभी जो सेरिब्रम है ना, इट कंसिस्ट ऑफ 4 लोब्स. एक लोब तो आपने देखा कहाँ प्रेजेंट है? ऑल्फैक्टरी लोब. एक तो अलग से प्रेजेंट है, और सेरिब्रम के अंदर विच इज सराउंडेड द ऑल्फैक्टरी लोब विच इज कवर्ड बाय द सेरिब्रम.
Now the cerebrum itself, it consists of 4 lobes. So let's write the 4 lobes present in cerebrum. It consists of 4 lobes. इसको जूम कर लिया ना. Cerebrum, it consists of 4 lobes. The first lobe is occipital lobe. Occipital lobe क्या करता है? It is the reason for visual perception. ठीक है? Occipital lobe is region for visual perception. Right? Then second lobe is frontal lobe, which is for the muscular activity. Frontal lobe is for muscular activities. ठीक है? Third is parietal lobe. Parietal lobe is for touch, smell, tongue, taste, etc. ठीक है? Temperature for touch, smell, temperature, etc. And the last is temporal lobe, which is for the auditory receptions. ठीक है? Temporal lobe, it is for auditory reception. ठीक है? So this is about the cerebrum. The third part of the brain, of the forebrain, is diencephalon. ठीक है? Diencephalon, it consists of 2 main parts. Mainly it is made up of 2 main parts, thalamus and hypothalamus. So let's write about the diencephalon. ये आपने लिख लिया होगा. Now I am discussing about the diencephalon. Diencephalon, it consists of 2 main parts again, thalamus and hypothalamus. Thalamus and hypothalamus. Thalamus क्या होता है? It consists of, it serves as the relay center for sensory neuron and motor neurons from spinal cord and medulla oblongata to the cerebrum. ठीक है? To the forebrain. ठीक है? It consists, जो diencephalon है, it serves as the relay center for sensory and motor neuron from spinal cord and medulla oblongata to cerebrum. So write this information. Serves as relay center, for sensory and motor neurons. From spinal cord and MO, आप लिख सकते हो, याद रखिएगा, medulla oblongata, or write down the full term, medulla oblongata is the part of the hind brain. जब हम hind brain देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या होता है. तो मेडुला ऑब्लोंगेटा और स्पाइनल कॉर्ड से जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स होते हैं में, उनके लिए ये नर्वस, इट फंक्शंस एज द रिले सेंटर एंड इट टेक्स देम फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा टू द सेरेब्रम. सेरेब्रम आपको पता चल गया है. सेरेब्रम इज द पार्ट ऑफ द
forebrain, and it recognizes the impulse of heat, cold, pain, etc. जो थैलेमस होता है ना, it recognizes the impulses, जो बहुत ही important point है. It recognizes the impulses of heat, cold, pain, etc. तो ये मैं बताते चल रही हूँ कि कौन सा सेंटर, जैसे कि ब्रेन के थ्री पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन. फोर ब्रेन के थ्री पार्ट्स हैं, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम एंड डायनसेफेलन. ऑल्फैक्टरी लोब में हमने देखा कि इट रिसीव्स इंपल्सेस फॉर स्मेल. सेरिब्रम में हमने देखा कि 4 तरीके के लोब्स प्रेजेंट होते हैं. ऑक्सीपिटल लोब है, पैराइटल लोब है, फ्रंटल लोब है एंड टेम्पोरल लोब. ऑक्सीपिटल जो होता है, इट परसीव्स, इट इज द सेंटर फॉर द और द रीजन फॉर द विजुअल परसेप्शन है. फ्रंटल लोब इज फॉर मस्कुलर एक्टिविटी, पैराइटल लोब इज फॉर टच, स्मेल एंड टेम्परेचर, एंड द टेम्पोरल लोब इज फॉर द ऑडिटरी इंफॉर्मेशन, राइट. ऑडिटरी मीन्स हेयरिंग इंफॉर्मेशन. सो वो सारे लोब्स कहाँ, वो रीजन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेरिब्रम में. अब डायनसेफेलन में क्या होता है? डायनसेफेलन का जो रीजन होता है, इट हैज डायनसेफेलन में it recognizes, diencephalon basically it recognizes the impulses of heat, cold. हमें ठंडा लगता है, गर्म लगता है, हमें किसी बात का दुख होता है, that all is related, that all these impulses are recognized by the thalamus present in the diencephalon. Next part is hypothalamus. अब hypothalamus क्या होता है? It is the control center for hunger, thirst, thermoregulation. Actually कुछ तो इम्पल्सेस ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट इम्पल्सेस होते हैं, जैसे कि हमें कोई भी चीज डायरेक्ट दिख रही है, हम उसके बारे में सोच सकते हैं. कोई गर्म ऑब्जेक्ट हम टच कर रहे हैं तो हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड में जो रिफ्लेक्स आर्क फॉर्म होता है वो तुरंत हमें जलने से बचाता है, तुरंत हम अपना मसल पुल करते हैं, अपना हाथ खींच लेते हैं वहां से. लेकिन कभी कभी कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिसके बारे में एग्जैक्ट आइडिया हमें, जैसे कैसे पता चलेगा कि अब हमें भूख नहीं लग रही, हमारा पेट भर गया. हाउ डू वी गेट दिस फीलिंग ऑफ फुलनेस, या हमें भूख लगी है तो वी आर गेटिंग हंगर, वी नीड टू ईट सम फूड. हाउ डू वी गेट दीज इम्पल्सेस? दीज इम्पल्सेस, फॉर सच टाइप ऑफ इम्पल्सेस देयर इज अ स्पेशल सेंटर दैट इज हाइपोथैलेमस. ठीक है, तो इट इज द हाइपोथैलेमस विच इज द कंट्रोल सेंटर फॉर हंगर, थर्स्ट, थर्मोरेगुलेशन, स्लीप, सेक्स, ऑल अबाउट दिस. ठीक है, सो hypothalamus is very important. You write it down. It is the control center for hunger, thirst. भूख प्यास का सेंटर है, जहां से हमें पता चलता है कि हमें भूख लग रही है, प्यास लग रही है, राइट. थर्स्ट, थर्मोरेगुलेशन, sleep, sex, etc. ठीक है, so this is the hypothalamus. So these are all about the stress also. Stress center भी, stress का center भी कहाँ पे होता है? hypothalamus में. So this is about the forebrain. So this is the structure of human brain. Structure of human brain. मैंने बताया human brain is divided into 3 parts: forebrain, midbrain and hindbrain. So you can see this is the forebrain, and forebrain it consists of further 3 parts. आपको पता है olfactory lobes हैं, then cerebrum है और डायनसेफेलन. तो cerebrum is the largest part of the forebrain and this is the cerebrum. This is the cerebrum. ठीक है, and our brain is surrounded by a bony box which is known as the cranium. This is the cranium. Brain के चारों ओर meninges भी होते हैं, membrane present होते हैं. There are 2 meninges present around the brain and and outside those membrane then a bony cage is present which is known as the
cranium, right? So this is the cranium, the outermost part of the brain. Then this is the first part, this is the cerebrum, which is the part of the forebrain. Forebrain, after forebrain, midbrain and hindbrain is present. This is the midbrain. आप ये देख सकते हो. This is the midbrain. Midbrain जो है, it is further divided into two parts: central peduncles and the optic lobes. Midbrain के बाद, the third part of the brain is hindbrain, which is made up of three parts. Cerebellum. This is the cerebellum. This structure is cerebellum, which constitute the first part of the hindbrain. Then pons varolai. It is present just above the medulla oblongata. This is medulla oblongata. This is pons, and this is the cerebellum, which constitute the hindbrain. Now, आप देख सकते हो, here is this is the hypothalamus, which is the part of the diencephalon, and diencephalon is the part of the forebrain. Diencephalon is divided into two parts, thalamus and hypothalamus. Thalamus यहाँ पे नहीं शो किया है, hypothalamus शो किया हुआ है. So this is the hypothalamus. Now we have discussed till forebrain. Now I am going to discuss about the midbrain. Midbrain क्या होता है? It controls many involuntary actions. ठीक है? Midbrain जो होता है, इसका काम क्या होता है? It controls many involuntary action. Involuntary actions क्या होता है? जिसको कि हम खुद नहीं करते, जो ऑटोमेटिकली हो जाता है ना? तो मिड ब्रेन जो होता है, इट कंट्रोल्स मेनी इनवॉलेंट्री एक्शंस. बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स. मिड ब्रेन जो होता है, इट हैज टू पार्ट्स. फर्स्ट इज the first part of the midbrain is cerebral peduncles. ठीक है, cerebral peduncles ये क्या होता है? It consists of two heavy fine tracts of nerves which are known as the crura cerebri. Crura cerebri क्या करता है? It connects the forebrain to the hindbrain. Midbrain में two heavy tracts of two heavy fiber tracts are present. इनमें क्या होता है? crura cerebri. It is a structure which consists of two heavy fiber tracts. Fiber tracts होते हैं जो नर्व से ही बने होते हैं. तो it consists of two heavy fiber tracts. तो क्रूरा सेरेब्राई करता क्या है? इट कनेक्ट्स फोर ब्रेन टू हाइंड ब्रेन. ठीक है, यहाँ मिड ब्रेन में जो होता है क्रूरा सेरेब्राई प्रेजेंट होता है. क्रूरा सेरेब्राई क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ टू हैवी फाइबर ब्रेन ट्रैक्ट्स विच कनेक्ट्स दिस फोर ब्रेन टू दिस हाइंड ब्रेन. ठीक है, तो इसका काम क्या होता है क्रूरा सेरेब्राई का? इट कनेक्ट्स forebrain to hindbrain. The another part of the midbrain is optic lobe. बहुत सारे लोब्स हमने फोरब्रेन में पढ़े. ऑल्फैक्टरी लोब, देन मैंने बताया था पेक्टोरल, टेम्पोरल, ऑक्सिपिटल, है ना. Here olfactory optic lobes are present in the midbrain, which controls the eye movement and the hearing. ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? They controls the eye movement and hearing responses. Eye movement and hearing responses. So this is about the midbrain. Let's come to the hindbrain. Hindbrain क्या होते हैं? They are responsible for precision of voluntary actions as well as involuntary actions too. ठीक है, midbrain it controls many involuntary actions, but the hindbrain it is
responsible for precision of voluntary action. वॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं? जो हम खुद सोच के करते हैं. जैसे मैंने सोचा कि मुझे ये लेक्चर डिलीवर करना है, दिस इज अ वॉलंटरी एक्शन. स्नीजिंग, कफिंग, हमें नहीं पता होता कब हमें खांसी आ जाएगी, कब हमें छींक आ जाएगी. सो दोज आर द इनवॉलंटरी एक्शंस. हमारे हार्ट बीट कर रहा है, हमारे फूड हम खा रहे हैं तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है, दैट इज इनवॉलंटरी एक्शंस, राइट. तो जो एक्शन हम अपने विल से करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं, दोज एक्शंस आर वॉलंटरी एक्शन. एंड दीज वॉलंटरी एक्शंस दे आर प्रिसाइज्ड बाय द हाइंड ब्रेन, राइट. इसके अलावा हाइंड ब्रेन के कुछ पार्ट होते हैं विच ऑल्सो कंट्रोल्स द इनवॉलंटरी एक्शंस टू. सो हाइंड ब्रेन इन्वॉल्व इन द कंट्रोलिंग ऑफ द इनवॉलंटरी एक्शंस टू. ठीक है, it controls the involuntary actions too. Now hind brain, it is made up of 3 parts: cerebellum, pons feruli and medulla oblongata. It consists of 3 parts. So first part is cerebellum. Cerebellum is very large and well developed part. It is very large and well developed part, cerebellum. ठीक है, and it controls the coordination as well as maintains the posture and the balance of the body. cerebellum का जो हमारी बॉडी का बैलेंस बनता है ना, जो इक्विलिब्रियम में हमारी बॉडी रहती है, ठीक है, that is controlled by this cerebellum. हाइंड ब्रेन का जो पार्ट होता है, दिस सेरिबेलम, व्हाट इट डज, इट कंट्रोल्स एंड इट परफॉर्म्स द कंट्रोल्स एंड द कोऑर्डिनेशन ऑफ द फंक्शंस एंड इट मेंटेन्स द पोस्चर. हमारा पोस्चर जो मेंटेन करता है वो कौन मेंटेन करता है? सेरिबेलम. हमारी बॉडी बैलेंस करता है चलने, अदरवाइज चक्कर आ जाएगा, हम गिर पड़ेंगे. दैट इज कंट्रोल्ड बाय दिस सेरिबेलम. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन. इट कंट्रोल्स, it performs the control and coordination as well as maintains the posture and balance of the body. बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है. नेक्स्ट पार्ट इज pons feruli. दूसरा पार्ट जो सेरिबेलम का है, डेट इज pons feruli. ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के जस्ट ऊपर प्रेजेंट रहता है. इट लाइज जस्ट अबव द मेडुला ऑब्लोंगेटा. दिस इज pons feruli विच कंट्रोल्स सम एस्पेक्ट ऑफ रेस्पिरेशन. थोड़ा बहुत, मतलब इट कंट्रोल्स सम एस्पेक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन. ठीक है. And the posterior most part of the brain is medulla oblongata. बड़ा important part है medulla oblongata and it is the posterior most part of the brain, right? The largest part of the brain is cerebrum, which is the part of the forebrain. The posterior most part of the brain is medulla oblongata, which is the part of the hind brain. Medulla oblongata, what is it? This part it continues in the spinal cord. आप देख रहे हो, स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू रहता है. ठीक है. इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी फंक्शंस ऑफ द बॉडी सच एज हार्ट बीट, रेट ऑफ ब्रीदिंग, स्नीजिंग, कफिंग, वॉमिटिंग. जो मैंने बताया कि इनवॉलंटरी फंक्शंस जो होते हैं ना, उसको कंट्रोल करता है. तो मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करेगा? एक चीज अब ये ध्यान देना कि अभी हम मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में पढ़ रहे हैं. एक जगह हम पढ़ेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, जहां पे कि इंटरनल ऑर्गन्स के फंक्शंस को इनवॉलंटरीली कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ठीक है.
ऑर्गन्स के फंक्शंस को, ठीक है। और मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है, इट कंट्रोल्स आवर इनवॉलेंट्री फंक्शंस, राइट। सो मेडुला ऑब्लोंगेटा इट कंट्रोल्स involuntary actions of the body, involuntary actions of the body। एग्जाम्पल जैसे क्या होता है, हमारी हार्ट बीट हो रही है या रेट ऑफ ब्रीदिंग है, हार्ट बीट, रेट ऑफ ब्रीदिंग, sleeping, sneezing, vomiting, coughing, etc. So this is controlled by hindbrain, ठीक है। Next, the another type of nervous system is peripheral nervous system. Peripheral nervous system, it facilitate the communication between the central nervous system and the other parts of the body, ठीक है। Peripheral nervous system क्या करता है, it facilitates the communication between central nervous system and other parts of the body. Communication between central nervous system and other parts of body, ठीक है। It mainly controls the voluntary actions of our body, जैसे कि writing, talking, pulling a chair, right, shouting। हमने देखा था voluntary action एक कहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, कहाँ पे कंट्रोल हो रहा है, बाय द सेरेबेलम। हम एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, हम साइकिल चला सकते हैं, राइडिंग अ बाइसिकल, पिकिंग अप अ पेंसिल, पिकिंग अप अ पेन, दीज ऑल आर द voluntary actions. So these are controlled by the cerebellum of the hindbrain. But some voluntary actions are also, mainly the voluntary actions are controlled by the peripheral nervous system of the body. So it controls, एक तो cerebellum में हुआ the voluntary actions of the body, writing, walking, talking, teaching, these all are the speaking, these all are the voluntary actions, like, so it is the function of peripheral nervous system is it controls the voluntary actions of the body, ठीक है। Peripheral nervous system, it consists of cranial nerves and स्पाइनल नर्व्स। तो क्रेनियल नर्व्स कितने होते हैं, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स इसमें होता है, एंड इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स कितने होते हैं, देर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी एंड द 12 पेयर्स ऑफ द cranial nerves present है। So therefore the brain thus allows us to think and take action based on the thinking। तो this part of the brain, तो peripheral nervous system है, and the other this forebrain also, it allows it allows us to think and take actions according to our thinking। Next type of nervous system is autonomic nervous system or the ANS. It is also known as the self-governing nervous system. Autonomic nervous system is also known as self-governing nervous system. इसमें क्या होता है कि organs जो होते हैं basically they control and regulate the function of the internal organs of the body। जैसे कि heart के function को, हमारे ब्लड वेसल्स को, हमारी जो ग्लैंड्स होती हैं या स्मूथ मसल्स होते हैं एलिमेंट्री कैनाल या फिर यूट्रस के, उनको जो है इनवॉलेंटरीली कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो इट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी इनवॉलेंटरीली, ठीक है। कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द
internal organs of our body involuntarily. Example: heart, blood vessels, glands, smooth muscles of alimentary canal, AC for alimentary canal and uterus. अब ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, इट इज अगेन ऑफ टू टाइप. ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, दे आर अगेन ऑफ टू टाइप्स, sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. Sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system, right? अब जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ये जो ऑर्गन्स हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है कि इनवॉलंटरीली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनके फंक्शंस को कंट्रोल और रेगुलेट करता है. तो हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं ना, दीज ऑर्गन्स दे रिसीव्स नर्व्स फ्रॉम बोथ द टाइप ऑफ दिस नर्वस सिस्टम है. दे हैव अपोजिट इफेक्ट्स ऑन द ऑर्गन्स. अगर एक नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेटरी इफेक्ट है तो दूसरे का क्या होगा, इनहिबिटरी इफेक्ट होगा. जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे, दीज ऑर्गन्स जहां मैं बात कर रही हूं, जिनको कि इनवॉलंटरीली ये कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो दीज ऑर्गन्स दे रिसीव नर्व्स फ्रॉम बोथ दिस नर्वस सिस्टम. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से भी रिसीव करेंगे एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से भी रिसीव करेंगे. बट इफ वन इज स्टिमुलेटरी, अगर इससे जो नर्व्स रिसीव किया है अगर वो स्टिमुलेटरी है, तो अनदर वन विल बी द इनहिबिटरी, राइट? एडवर्स इफेक्ट होगा एक दूसरे के दोनों का. सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ द नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस.